I'm not a failure, I'm a winner. Not because I did not experience failure, but because I chose not to give up. इस वीडियो के आखिर में मैं तमाम बातें उर्दू में करूंगी उन तमाम प्यारे YouTube फैमिली के लिए, उन मेंबर्स के लिए जो चाहते हैं कि मैं उर्दू में बात करूं. There is a huge difference between losing and losing hope. But in order to understand this fully, we need to redefine the word failure. And more than just redefining, we need to normalize the word failure. You know, even at this moment, a lot of us would rather give up on our lives than experiencing the word failure. You know why? Because we have demonized the word failure for eons. We have attached all the negative words like bitterness or permanent loss or disrespect or humiliation with the word failure. Then why would someone ever feel like being a failure? No wonder why our youngsters are scared of failing in every sense of word. But to me, in all honesty, I have always considered the word failure as a stepping stone on the road to success. I have always believed that in order to fully enjoy the victory or win, we must learn to enjoy failure, or at least we must taste failure for once. Today I'm going to share something very personal with all of you to fully understand why we all need to fail to feel the victory in its true letter and spirit. You know, every day when I wake up in the morning, every single day, I wake up as a failure. I try to sit on my own on the bed, but I fail and I fall back because my back muscles are weak and I cannot sit on bed on my own. I need assistance, but I don't give up. I try to sit on my own again and I fall back and I fail miserably. I do this so many times and I fail so many times, and then a point comes where my mother comes in the room, she lends her helping hand and makes me sit on my own with her assistance, and that's how I'm able to sit on my own. But now when you look at this whole practice, well, technically, I start my day as a failure because I cannot even sit on my own without assistance, right? But if I start to call myself a failure, if I start to give up on myself, will I ever be able to start my day? Will I ever be able to sit in this wheelchair with confidence, grace, and gratitude? If I label myself as the biggest failure of all times, a person who cannot even sit on her own, will I ever be able to do what I do? Absolutely not. I do not consider myself as a failure because, trust me, when the whole day passes and I shift to bed again at night, I'm not a failure, I'm a winner. Not because I did not experience failure, but because I chose not to give up. That's why I've always talked about let's stop demonizing the word failure. I have never allowed failure to dictate me. I have never allowed failure to get in my way. I have always accepted and embraced all the shortcomings, all the failures with open arms because I know that when I celebrate my victory, it's only because I have experienced and tasted failure. So remind yourself every single day that there is a huge difference between losing and losing hope. It's okay. When we are on a journey of self-exploration, we will fail, we will fall, we will lose multiple times. We don't fail when we lose, we fail when we give up. So please, do not shy away from the word failure. Do not demonize the word failure. Don't be scared to fail, because when you face the failure, you actually get the chance to celebrate and enjoy your victory. That's why I've always said this, and I'll say it again, that failure is an option. Failure should be an option, but giving up is never an option. मैंने आपके तमाम कमेंट्स पढ़े जिसमें आपने ये रिक्वेस्ट की कि मैं सिर्फ अंग्रेजी में वीडियोस क्यों बनाती हूँ, उर्दू में क्यों नहीं। लिहाजा इस वीडियो के आखिर में मैं तमाम बातें उर्दू में करूँगी उन तमाम प्यारे यूट्यूब फैमिली के लिए, उन मेंबर्स के लिए जो चाहते हैं कि मैं उर्दू में बात करूँ।
हारने में और हिम्मत हारने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर इस बात को समझने के लिए हमें लफ्ज़ हार को रीडिफाइन करना होगा। इसको हम अंग्रेज़ी में फेलियर कहते हैं। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि ख़बरदार अगर फेल हुए तो, फेल हो गए तो ज़माने में इज्जत कैसे होगी। हमने हमेशा से, कई अरसे से इस लफ्ज़ हार यानी फेल को डीमोनाइज किया है, इस हद तक कि हमने शर्मिंदगी, डिसरिस्पेक्ट और इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स को इस लफ्ज़ हार से या फेलियर से मंसूब किया है। तो भला क्यों कोई चाहेगा फेल होना? हम सब चाहेंगे कि हम कभी ज़िंदगी में फेल ना हो और सिर्फ कामयाबी ही हमारा मुकद्दर हो, मगर ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं। हम सब कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ चीज़ें हमें गिव अप करनी होती हैं, मगर उसमें हार ज़िंदगी का एक भरपूर हिस्सा है जिसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि कितनी अजीब सी बात है कि मैं कह रही हूँ इट्स ओके टू फेल, हारने में कोई कबाहत नहीं। मैं एक बहुत ही पर्सनल बात आपसे शेयर करना चाहूँगी ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि फेलियर से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का डेली रूटीन का हिस्सा है। फेलियर मेरी डेली रूटीन का भी हिस्सा है। हर रोज़ जब मैं खुद बग़ैर किसी की मदद के, बग़ैर किसी सहारे बैठने की कोशिश करती हूँ, आई फॉल बैक, क्योंकि मेरे बैक मसल्स बहुत कमज़ोर हैं और मैं बग़ैर मदद या बग़ैर सपोर्ट के खुद नहीं बैठ सकती। मगर मैं हिम्मत नहीं हारती। मैं बार बार उठने की कोशिश करती हूँ, ये सोचकर कि शायद एक दिन ऐसा आए कि बग़ैर मदद, बग़ैर सहारे के मैं खुद अपने बलबूते पर बैठ सकूँ और मेरा दिन विक्ट्री के साथ स्टार्ट हो। मगर पिछले 14 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ। फिर अपनी वालदा की मदद से हर रोज़ मैं खुद से बैठने की कोशिश करती हूँ। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्ट माई डे। ये है मेरे दिन का आगाज़ एज अ फेलियर, एक ऐसा शख्स जो खुद से बैठ भी नहीं सकता। अब ज़रा सोचिए, अगर मैं इस बात को अपने जहन पर, अपने दिल में सवार कर लूँ, क्या आपको लगता है कि मैं इस व्हील चेयर पर इस कॉन्फिडेंस और ग्रेस के साथ और शुक्रगुजारी के साथ कभी बैठ सकूंगी? यहाँ बैठकर आपसे बात कर सकूंगी, दुनिया का सामना कर सकूंगी? नहीं, क्योंकि जब रात होती है, पूरा दिन गुजरता है, एंड व्हेन आई शिफ्ट टू बेड अगेन, मैं एक लूज़र नहीं होती, मैं एक फेलियर नहीं होती, मैं एक विनर होती हूँ। नॉट बिकॉज मैंने फेलियर को महसूस नहीं किया या मैंने हार को नहीं देखा, बल्कि इसलिए कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं हार गई मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे नज़दीक फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन है जब आप कामयाबी के सफ़र पे हो। बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि जो चीज़ें आप करना चाहते हैं आप नहीं कर पाएंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप हिम्मत हार जाएं। इस दुनिया में अगर आप चाहते हैं कामयाब होना और उस कामयाबी को, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करना, उसको एंजॉय करना, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए कि आप फेलियर को भी उसी तरह एक्सेप्ट करें, एंजॉय करें। क्योंकि वो लोग जिन्होंने हार का मज़ा चखा होता है, हकीकत में वही लोग हैं जो जीत का भरपूर मज़ा उठाते हैं। लिहाजा अगर आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बड़े मसाइल हैं और आप एक बहुत बड़े फेलियर हैं, प्लीज़ अपने आप को ऐसे लफ्ज़ के साथ लेबल मत कीजिए। हम सब एक जर्नी पे हैं, हम सब चीज़ें सीखते हैं, हम इवॉल्व होते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम बहुत सी जगहों पर जीतते हैं, बहुत सी जगहों पर हारते हैं, मगर हिम्मत हारने वाला शख्स हमेशा के लिए हार जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे बड़ों ने अक्सर ये बात कही थी, खबरदार फेल हुए। मैं हमेशा एक बात कहूँगी, हार से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप हारते हैं तभी आपको अंदाज़ा होता है कि जीत कितनी खूबसूरत है। हर हार को एक लेसन, एक पर्पस के तौर पर इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को ऐसे नेगेटिव लेबल से दूर रखिए। आई विल से इट अगेन दैट फेलियर इज एन ऑप्शन। फेलियर एक ऑप्शन होना चाहिए। हार मान जाना न कभी ऑप्शन था, न कभी होना चाहिए।